proud moment for our chief guest and, of course, for the other dignitaries carrying M16 rifles. And following their contingent, you can hear the strains of the tune, marching tune, Captain. The impressive military band of the UAE comprising 35 musicians. And this is the first contingent. Going past the saluting pace, the 61 Cavalry led by Captain Pritam Mishra. This is the only serving active horse cavalry regiment in the world, raised on the 1st of August 1953. And their motto, Ashva Shakti Yashabal, meaning horsepower forever supreme. Behind the canter of the hooves, you can hear the rumble of the tanks. The first column, the main battle tank of the Indian Army, the T-90 Bhishma, led by Lieutenant Vishesh Tiwari of the 58 Armoured Regiment. Fitted with a thermal imaging system, ERA panels and an integrated fire control system, armed with a 125mm smoothbore gun. The motto of the regiment, Awwal Attavan Sarvashresht. मंच के सामने से गुजरता हुआ T-90 भीष्म का दस्ता और उसके ठीक पीछे हम देख सकते हैं इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMK-2 का दस्ता। हर्ष उल्लास रोमांच से सराबोर होते हुए जनसमूह 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर रंगों में सजा धजा। ये माहौल जिसे रोमांच प्रदान करते हुए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMK-2 का नेतृत्व कर रहे हैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 10वीं बटालियन के कैप्टन वैभव थोटे। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। युद्ध घोष, गरुड़ का हूं बोल प्यारे। इस बटालियन के सैनिकों ने अपनी बहादुरी से बहुत से वीरता सम्मान अर्जित किए हैं और देश का नाम रोशन किया है। यादगार क्षणों को हमेशा के लिए कैद करने की कोशिश। अपार जनसमूह। अगला दस्ता राजपथ पर सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ 861 मिसाइल रेजिमेंट की अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर का नेतृत्व कैप्टन सुनीत लोपेस के हाथों में। रेजिमेंट का नारा, सही करो, पहली बार करो, सदैव करो। यह अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से तेज चलते हुए 290 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य पर वार करने में सक्षम। अगला दस्ता हथियार खोजी रडार स्वाति का स्वदेश निर्मित रडार, नेतृत्व सूबेदार प्रमोद कुमार के हाथों में। यह रडार किसी भी मोटार, आर्टिलरी गन और रॉकेट को भांपकर दुश्मन के हथियार की लोकेशन को सटीकता के साथ मालूम कर लेता है। स्वाति उपकरण एडवांस डिजिटल ट्रांसमीटर से लैस तिरंगा
हवा में लहराता हुआ राजपथ के दोनों ओर। अगला दस्ता 475 इंजीनियर ब्रिगेड की CBRN कंपनी के रासायनिक जैविक विकिरण नाभिकीय आतिक्षण वाहन का नेतृत्व मेजर PK मोरोलिया। इस कंपनी की स्थापना हुई वर्ष 2010 में। इस वाहन का निर्माण जोधपुर, अहमदनगर, पुणे और ग्वालियर में किया जाता है। And this is the transportable satellite terminal vehicle from the Corps of Signals, led by Captain Tamanna Bhasin and Captain Inderpal Singh of 2 Army Headquarters Signal Regiment. These vehicles are part of the state-of-the-art defense communication networks and provide tri-services interconnectivity between the users of the Army, the Navy and the Air Force. And the motto of the Corps of Signals, Tibra Chaukas. And here's the Akash weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, led by Captain Anindra Bansal. Captain Anindra Bansal and Lieutenant Garima leading this detachment. The 27 Air Defence Regiment is the first unit of the Indian Army which is being equipped with the Akash weapon system. This is the first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles against the enemy's aerial platforms. And approaching the saluting days, 2 advanced light helicopters, weapon system integrated Rudra and 2 advanced light helicopters drove off the Army aviation, flying past in a diamond formation. And the formation was flying at a speed of 150 kilometers per hour and at a height of 60 meters above us. The Dhanush gun system on display at Rajpath. Captain Nachiketa Sanjay Karodpati of 138 Medium Regiment leading it. The Dhanush gun system is among the most modern, high-tech, indigenously developed and manufacturing gun systems in the world. राजपथ पर हवा तेज होती हुई, रोशनी कभी कम और कभी बेहतर होती हुई, और इधर बहुत चुस्ती से सलामी मंच के सामने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 9वीं बटालियन के कैप्टन सुदर्शन V। रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने देश की सेवा करते हुए कई वीरता सम्मान अर्जित किए हैं। इनका आदर्श वाक्य वीरता और विश्वास, युद्ध घोष, भारत माता की जय। GCO और 48 वाद्यकारों से सजा ये संयुक्त बैंड आर्मर्ड सेंटर कोर एंड स्कूल के सूबेदार राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में इनका सहयोग कर रहे हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार वालीकर। ये बैंड धुन बजा रहा है अमर सेनानी। सलामी मंच के सामने बिहार रेजिमेंट का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं बिहार रेजिमेंट की 15वीं बटालियन के कैप्टन राहिल रावत। इनका आदर्श वाक्य कर्म ही धर्म और युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय।
चुस्ती से मार्चिंग करता हुआ ये दस्ता 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर की 9 गोरखा राइफल्स का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 4/9 गोरखा राइफल्स के मेजर गौरव हृदय। युद्ध घोष जय महाकाली आयो गोरखाली। Going past the saluting base, the combined band of the Punjab Regimental Centre and Sikh Regimental Centre marching smartly to the tune of Sher-e Jawan. 3 JCOs, 48 musicians led by Subedar Major Hemraj. And this is the 58 Gorkha Training Centre, contingent gallant Gorkhas of the 5 Gorkha Rifles led by Lieutenant Roshan Kumar Yadav of 5-8 Gorkha Rifles. Their motto, Shaurya or Nishtha. Their war cry, Ayo Gorkhali. Going past the saluting base, the Madras Engineering Group and Centre, led by Captain Priyanshu Thama of the 38 Assault Engineer Regiment. This regiment has been awarded 42 battle honours, 14 theatre honours, 2 Mahavir Chakras, 13 Veer Chakras, 3 Kirti Chakras and 20 Shaurya Chakras. This is the combined band of the Bihar Regimental Centre and Ladakh Scouts. The tune, Samvidhan, led by Subedar Major Radhe Shyam of the Ladakh Scouts. सलामी मंच के सामने चुस्ती से आगे बढ़ता हुआ अगला मार्चिंग कंटिंजेंट है 103 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सिख लाइट इन्फेंट्री का। नेतृत्व मेजर गुरपाल सिंह धांजू के हाथों में। अब आ रही है पूर्व सैनिकों की झांकी। झांकी की थीम है पूर्व सैनिक देश की सेवा में सदैव तत्पर। ये झांकी हमारे पूर्व सैनिकों के विभिन्न क्षेत्रों में उनके संस्थापन को दर्शा रही है। पूर्व सैनिक हमारे राष्ट्र का गौरव और हमारे सैन्य परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा। और अब आ रहा है भारतीय नौसेना का ब्रास बैंड। बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर रमेश चंद्र कटोच म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास के नेतृत्व में ये ब्रास बैंड बजा रहा है जय भारती की जोशीली धुन।
इस ब्रास बैंड के ब्रांड मास्टर रमेश चंद्र कटोच लगातार 28 साल से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे हैं। और अब सलामी मंच के समक्ष लेफ्टिनेंट अपर्णा नायर के नेतृत्व में हमारी समुद्री सीमा के कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता गुजरता हुआ। नौसेना के 144 युवा नौसैनिकों के इस दल में लेफ्टिनेंट नीतीश जोशी, लेफ्टिनेंट तनु और लेफ्टिनेंट मंदार कुलकर्णी दिख रहे हैं। Quite literally sailing on Rajpath, here's the naval tableau. The Indian Navy, a professional force anchoring stability, security and national prosperity. The tableau proudly illustrates the multi-dimensional Indian Navy, the net maritime security provider in the Indian Ocean region. The submarine arm of the Indian Navy is celebrating its Golden Jubilee this year, and therefore, as a tribute to the glorious service rendered by the sword arm, the Chief of Naval Staff has declared 2017 as the year of submarines. I salute our spirited mother and each of your fighting souls ensures your brilliant lives, and we will march towards our goal. The next Squadron leader Atal Singh Sekho leading the Air Force marching contingent. Flight Lieutenant Shashikala Sheshadri Maitre, Flight Lieutenant Drishyanath and Flying Officer Tripti Chaturvedi following the contingent commander. And this is the Air Force Band, leading it Junior Warrant Officer Ashok Kumar, and the melody Sound Barrier. 3 drum majors and 72 musicians. अब राजपथ पर भारतीय वायुसेना की झांकी। इस झांकी का थीम है नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशन से एयर डोमिनेंस। यहाँ नेटवर्क केंद्रित तत्वों के सर्वोत्तम प्रयोग से राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा में भारतीय वायुसेना की भागीदारी को दर्शाया गया है। इस झांकी में भारतीय वायुसेना के वृहद स्तर पर हुए रूपांतरण को दिखाया गया है। अपने नवीनतम सैन्य संसाधनों के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अस्त्र प्रणालियों की झलक दिखाता दस्ता। इस दस्ते का नेतृत्व नवीनतम सैन्य संसाधनों के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अस्त्र प्रणालियों की झलक दिखाता दस्ता शान से राजपथ पर बढ़ता हुआ। इस दस्ते का नेतृत्व 307 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन सबरी पीर एम कर रहे हैं। इस दस्ते में पहली झांकी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की है। ये भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी अस्त्र प्रणाली है। और अब आपके सामने आ रहा है मीडियम पावर रडार आरुद्रा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर मनीष राय। आरुद्रा एक मीडियम पावर रडार है जिसे स्वदेश में ही DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास स्थापना बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। आरुद्रा देश में निर्मित पहला डिजिटल कॉलिंग तकनीक से युक्त एक एक्टिव बेस्ड एरे मल्टी फंक्शनल रडार है। ये रडार मित्र या शत्रु की पहचान की आधुनिक प्रणाली से लैस है। देख रहे हैं चाल में लचक, मस्ती और बेफिक्री भी। हुजूर इस कदर की का इतरा के चलिए जरा हम आपका तारुफ करा दें। ये है
सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता मनुष्य और जानवर का कितना सुंदर सामंजस्य है उसको दर्शाता हुआ परेड ऐसा नहीं लग रहा इंडिया गेट पहुंचती हुई और उसके बाद अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। राजकीय वेशभूषा और शाही अंदाज के साथ डिप्टी कमांडेंट कुलदीप सीधी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज के साथ डिप्टी कमांडेंट कुलदीप सीधवी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता राजपथ पर केसरिया साफा, कलंगी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोहरी और झालर गोटा से सजा ये दस्ता सबका मन मोह रहा है। इस दस्ते में शामिल सभी जवान 6 फीट से ऊंचे हैं और सबने एक ही तरह की बनावट में मूंछें रखी हुई हैं। A riot of color and beauty. Young male camels of around 5 years of age are selected after a formal inspection, and they serve the force for about 15 years. And the strains you hear, color me crimson, color me gold, let stories of my grace always be told. The only band of its kind in the world, the camel-mounted band of the Border Security Force. Bandmaster Inspector Phularam Rana is leading these bandsmen. The tune, Hum Hai Seema Suraksha Bal. Coming now, guardians of the vast Indian coastline, Indian Coast Guard marching contingent. As you can see, it's an unusual day, and of course the pictures definitely very, very unusual. This is the Arch of India Gate. From color to sobriety. This is the Indian Coast Guard marching contingent. Deputy Commandant Arvind Kumar Pandey is leading the marching contingent. And this force holds the credit of saving more than 7,000 lives at sea since its inception. Young hands applauding dedication and discipline. And this is the Central Reserve Force Police Band. Inspector Amar Singh is leading this band. The tune, Desh Ke Hum Hai Rakshak. Following the CRPF band, we have the CRPF marching contingent. Assistant Commandant Amit Kumar leading this contingent of 148 personnel. The CRPF is the largest and one of the oldest paramilitary forces in the world. Their motto, service and loyalty. देश का 68वां गणतंत्र दिवस समारोह हर भारतवासी को गौरव का एहसास कराता हुआ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का बैंड नेतृत्व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर करण सिंह द्वारा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मार्चिंग दस्ता
सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ 148 जोशीले जवान डिप्टी कमांडेंट अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में पूरी स्फूर्ति उत्साह के साथ। आदर्श वाक्य संरक्षण एवं सुरक्षा। अब आगे बढ़ रहा है दिल्ली पुलिस का बैंड। नेतृत्व सब इंस्पेक्टर जगजीत सिंह कर रहे हैं। 4 सब इंस्पेक्टर समेत इस दस्ते में 68 दिल्ली पुलिस के जवान शामिल।